Hello and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5, lines and angles, part 3. We are going to continue with exercise 5.1. Fourth question. Find the angle which is equal to its complement. In the earlier video, students, I explained you that what are complementary pair of angles and supplementary pair of angles. I just remind you a little bit in this video also that when two angle add up to, that means the sum of two angle is equal to 90 degree, then the pair of that angle is called as complementary angles. In the similar way, when two angle add up to, that is the sum of two angle is equal to 180 degree, then that pair of angle is called as supplementary. Now here we have to find angle which is equal to its complementary angle. That means one angle is there and this angle is equal to its complementary angle. And when we add both these angles, we get the answer 90. But we don't know what is that angle which is equal to its complementary angle. So let us suppose that let the angle which is required be x. हमें जो एंगल चाहिए सपोज वो x है. अब ये जो एंगल x है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इक्वल है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इक्वल है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मेजर है वो इस एंगल जितना ही है यानी x. तो दोनों एंगल x हुए है ना. सो द रिक्वायर्ड एंगल सिंस एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द एंगल्स आर इक्वल, सो द रिक्वायर्ड एंगल and its complementary, they both are called as x. Understood? Now this angle, required angle is x and its complementary angle is also x, so both are x. So now let us add these x, one angle and its complementary angle, which will be definitely equal to 90 degree because it is said that they both are complementary. That means definitely when you're going to add these two x, you are going to get the answer 90. So x plus x gives 2x equals 90. 2x, that means 1x is actually equals to this 90 will be divided into 2 because one part will be taken by 1x and another part will be taken by another x. That means this 90 degree should be divided into two equal parts. That's why dividing it by 2. So when you divide 90 by 2, what answer you get? You get 45 degree. That means this is that angle which is equal to its complementary angle. That means the required angle is 45. Now let me show you through the picture. This is a protector, correct? And when this protector is actually having 90 degree like this. Okay, now this 90 degree should be divided into equal angles and that equal angle is 45. That means this angle 45 and this angle 45. When you add these two angles, it makes one right angle, that is 90 degree. Understood? Let us move on to 5.1's next question, that is that's question number 5. Now this time we have to find the angle which is equal to its supplementary angle. Now in the earlier question, two angles which were equal, they add up to complementary, but this time we have to find the angle which is equal to its supplementary, and when we add these two, we are getting 180. So again we have to start with the supposition. हमें फिर से supposition से start करना है कि suppose हमें जो angle चाहिए वो x है. Let the required angle be x. अब ये जो एंगल x है वो अपने सप्लीमेंट्री से इक्वल है यानी रिक्वायर्ड एंगल तो x है ही, सप्लीमेंट्री एंगल जो उसका होगा ना इस x का सप्लीमेंट्री एंगल वो भी x होगा. दैट मीन्स द रिक्वायर्ड एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री आर x because it is said here they both are equal. So रिक्वायर्ड एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल दोनों इक्वल हुए, दोनों को हम x कहेंगे.
So this time when we add these two, we are not getting 90. You know why? Because this time it is not complementary here. This time it is supplementary. अगर complementary कहा हो तो दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 आएगा, बट अगर supplementary कहा हो तो दोनों x को ऐड करने पर 180 आएगा. Understood? Again, let's add x plus x. So what it is? 2x. And when we add 2x, we are getting 180. Now we have to divide this 180 into 2x part, that is 2 parts. That means 1x will get 1 part out of this 2. यानी हमें 180 का हाफ करना पड़ेगा. तभी तो हम एक हाफ इस x को यानी रिक्वायर्ड एंगल को और दूसरा हाफ उसका सप्लीमेंट्री को दे सकेंगे और दोनों इक्वली होंगे. So let's divide 180 by 2 and we are getting x as 90. So this is our required angle 90. Understood? That means 90 is equal to 90. And when we add two 90s, we get 180. Now let me show you through the picture. This is a picture of a correct protector. Now look at this. This is a 90-degree angle. This 90 and another 90 this side. They both actually add up to one whole protector, that is 180. So 90 plus 90 will be equal to the whole protector, this, that is 180. Understood, students? Very good. Let's move on to the next question of exercise 5.1, that is question number 6. Now this is such a question that here 1 and 2 एंगल्स आर गिवन एंड दे बोथ आर एडिंग अप टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो एंगल हैं जो बिल्कुल पूरा एक कंप्लीट प्रोटेक्टर बना लेते हैं, यानी 180 डिग्री बन जाता है. दैट्स व्हाई दे बोथ आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल. अब कहा ऐसा है कि अगर दो एंगल हैं, हम किसी एक एंगल को डिक्रीज करें. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एक को हम कम करते हैं, सो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन द सेकंड एंगल. अगर एक कम होगा तो दूसरे में क्या होगा? वो बढ़ जाएगा या वो भी कम हो जाएगा? हमें ये पूछा गया है. बट ये चीज का ध्यान रखना है दैट दे बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, यानी हम 1 तो कम कर ही रहे हैं, एंगल 1 तो डिक्रीज कर ही रहे हैं, 2 में क्या चेंजेस होंगे वो पता नहीं है, बट एक कंडीशन को फिक्स रखना है कि दोनों एंगल को ऐड करने पर वो प्रोटेक्टर का 180 कंप्लीट होना ही चाहिए, यानी वो सप्लीमेंट्री होने ही चाहिए. राइट? सो लेट अस गो फॉर दिस फिगर विच इज एक्चुअली देयर इन द टेक्स्ट बुक. यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, ये है 1 और ये है 2. आप देख सकते हैं एंगल 1 इज ग्रेटर because it is obtuse and angle 2 is lesser because it is acute. क्या करना है? हमें इस एंगल की लाइन को, यानी ये जो रे है, हम इसे धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि अगर आप 1 को डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली ये 2 क्या होगा, ये आर्म जो है एंगल का, ये दोनों के लिए कॉमन आर्म है, यानी ये एंगल अगर बढ़ रहा है 1 के लिए, कम हो रहा है 1 के लिए, तो 2 के लिए बढ़ता जाएगा ना. इसी यहां से मैं बढ़ाऊंगी तो ये एंगल जो 2 है ये इस लाइन के साथ यहां तक आने में बढ़ता जाएगा. तो फिगर के थ्रू तो हमें समझ में आ गया कि 1 इज डिक्रीज देन सेकंड इज इंक्रीज. अब देखिए अगर हम बढ़ाते हैं तो कैसा होगा. नाउ सपोज दिस इज अवर एंगल 30 एंड दिस इज 180. अब मैं इसलिए आपको मेजरमेंट दिख रही हूं कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं. देखो अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने पर 180 आएगा. अब ये चीज को फिक्स रखनी है, राइट, कि 180 ही होना चाहिए, लेकिन 1 को डिक्रीज करना है. अब हमें ये फाइंड करना है कि सेकंड एंगल में क्या चेंज होगा. तो देखिए मैंने जैसे ही इस आर्म को बढ़ाना डिक्रीज करना स्टार्ट किया, इस तरफ लाना स्टार्ट किया, मैं लेकर आ गई यहां तक, राइट. अब यहां तक लेकर आने में मेरा ये जो एंगल 1 था, जो 150 हो रहा था, अब वो डिक्रीज होके 40 हो गया. और जो मेरा सेकंड एंगल था जो 30 था, अब इंक्रीज होके 140 हो गया. यस, इंक्रीज होके, यानी अगर एंगल 1 डिक्रीज होता है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल इंक्रीज होता है. और अगर हम ये कहें कि अगर हम सपोज 1 को इंक्रीज करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा? करेक्ट,
डिक्रीज, दोनों ऑपोजिट वे में चल रहे हैं, वन इंक्रीजेज देन अदर डिक्रीजेज, इफ वन डिक्रीजेज देन सेकंड वन इंक्रीजेज, अंडरस्टूड. सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट एज angle 1 and angle 2 are supplementary angles. Of course we have to mention the statements because this is a number story, that is a word problem, and word problem have the statements which carry marks. Okay, so angle 1 and angle 2 are supplementary angles, so that's why if angle 1 is decrease, then certainly angle 2 must be increased, and that too by the same measurement. Now what does same measurement mean? जैसे कि ये आर्म को हमने 1 डिग्री इंक्रीज किया एंगल 40 के लिए, तो ये 41 हो जाएगा. तो ये बाजू जो 140 है ना, वो 1 डिक्रीज हो जाएगा, यानी 139 हो जाएगा. आपको समझ में आया? अगर एक एंगल 1 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एंगल 1 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है, यानी जितना एक तरफ ऐड होता है उतना ही दूसरे एंगल में सब्ट्रैक्ट होता है. दिस इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम मेजर्स, अंडरस्टूड. तो सेकंड वाला जो एंगल है वो सेम मेजरमेंट से इंक्रीज होता जाएगा, एंड हेंस द एंगल पेयर रिमेन्स सप्लीमेंट्री. आप अभी इन दोनों को ऐड कीजिए, 40 प्लस 140 को देखिए, आपका टोटल आएगा 180. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. Now let us move on to the another question of exercise 5.1, that is 7th one. Now here one condition is given that can, not condition is given, one question is there which is asking you something in 3 different categories. Now let's see what is the question. Can 2 angles be supplementary? क्या 2 एंगल supplementary हो सकते हैं? If condition दी है 2 angles are, अगर वो 2 एंगल्स acute हो, अगर दोनों के दोनों acute हो तो क्या supplementary होंगे? अगर दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज हो तो क्या सप्लीमेंट्री होंगे? और अगर दोनों के दोनों राइट एंगल हो तो क्या सप्लीमेंट्री होंगे? हमें ये तीनों में चेक करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन सॉल्विंग ईच केस. नाउ द फर्स्ट केस इज ऑफ अक्यूट. तो अगर सिंस अक्यूट एंगल कहा गया है, वी नो दैट अक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 90. अक्यूट एंगल जब भी बोला होगा वो लेस देन 90 होगा. मैंने आपको बताया था 89 इज द लिमिट, क्योंकि जैसे ही 90 पर पहुंचा ना एंगल, वो अक्यूट नहीं कहलाता, फिर वो राइट एंगल कहलाता है. तो हमारे लिए लिमिट है अक्यूट एंगल की 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक. तो यहाँ पर तो 90 है, तो ये तो लेस ही हुआ, अक्यूट एंगल इज लेस देन 90. अगर ऐसे अक्यूट, अगर हमें क्या लेना है, सप्लीमेंट्री करने हैं दोनों एंगल्स को लेकर, यानी हमें 2 अक्यूट एंगल्स लेने हैं. तो हम लोग ले लेते हैं 1 अक्यूट एंगल प्लस अनदर अक्यूट एंगल, एंड दे बोथ आर लेस देन 90. नाउ लेट अस ऐड दीज 2 अक्यूट एंगल्स. दोनों को ऐड करेंगे तो दिस 1 अक्यूट एंगल एंड दिस 1 अक्यूट एंगल इज एक्चुअली 2 अक्यूट एंगल्स. और अगर ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, हम इन दोनों 90 को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 180. तो लेस देन ही होंगे ना. 2 अक्यूट एंगल्स आर लेस देन 180, क्योंकि दोनों 90 को प्लस करने पर 180 होता है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री पैर ही बनाना है. ये क्या इक्वल है? कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? नहीं, सप्लीमेंट्री होने का पहला कंडीशन है इक्वालिटी, नॉट लेस देन और ग्रेटर देन. यानी ये 2 एंगल्स जो हैं वो अभी भी 180 से लेस हैं, यानी ये तो इक्वल नहीं हुए 180 के. और अगर इक्वल नहीं है 180 के तो ये सप्लीमेंट्री पेयर नहीं कहलाएगा, कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री. सो वी राइट द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, thus the 2 acute angles cannot be supplementary. Now let us move to the next case of obtuse angle. Similar way में हमें 2 obtuse एंगल लेने हैं, और दोनों obtuse एंगल को ऐड करके हमें ये बताना है क्या वो दोनों 180 यानी सप्लीमेंट्री पैर बनाते हैं. अब जिस तरह acute लेस देन 90 होता है, obtuse एंगल ग्रेटर देन 90 होता है. यानी ऑब्ट्यूज एंगल की लिमिट स्टार्ट होती है 91 से और एंड होती है 179 पर. क्यों 180 नहीं? क्योंकि 180 अगर एग्जैक्ट होगा तो वो तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, राइट? तो नहीं, यहां पर तो हमें ऑब्ट्यूज बोला है, यानी दे आर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, यानी 179 पर लिमिट खत्म हो जाती है. ऐसे हमें कितने एंगल लेने हैं? 2 ऑब्ट्यूज एंगल लेने हैं. अगर 2 ऑब्ट्यूज एंगल लेने हैं, सो लेट अस ऐड ऑब्ट्यूज एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 अगेन अनदर ऑब्ट्यूज एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90.
Of course they are greater. Now let us add them. When we add one obtuse and another obtuse, we get two obtuse, and 90 will give us 180. राइट? तो देखिए, दो ऑब्ट्यूज एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो वो डेफिनेटली 180 से ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. बट एज आई सेड यू, we don't need less than or greater than sign for supplementary, we need equality sign, and we cannot write equal here. हम ऐसा नहीं बोल सकते obtuse angle is equal to 90. No, right angle is equal to 90. So हम यहाँ पे equality तो लगा ही नहीं सकते. अगर ये कह दें कि चलो भाई हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन की साइन निकालकर इक्वलिटी लगा लेते हैं, तो नॉट पॉसिबल. हमारा स्टेटमेंट जो है वो हमारे मैथ्स के रूल को फॉलो नहीं करेगा. यानी ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू 90. अक्यूट एंगल अगर इस केस की बात करें तो अक्यूट एंगल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90, है ना. तो यानी ये तो भाई स्टेटमेंट राइट ही है, और यहाँ पर ग्रेटर देन की स्टेटमेंट भी साइन राइट है, ये सिंबल राइट है. यानी दो ऑब्ट्यूज एंगल, वेट अ मिनट, ओके, सो टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी, हम लोग अभी ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, दैट thus two obtuse angle cannot be supplementary. Now let us move on to the third case, that is right angle. Let's check. For third right angle, as we know, right angle are equal to 90. They are not greater, they are not less, but they are exactly equal to 90. So we have to take pair of right angles, that is 2 90s. So right angle plus right angle will give you 90 plus 90. अब तो यहाँ definitely answer आएगा, because it is having the equality sign. So it's two right angles equal to 180. So the concluding statement is, thus the two right angles are supplementary. So among the three cases, which angles have proved to be supplementary? Yes, see, right angles have proved to be equal to supplementary because acute angles are less than 180, the addition of two acute, right? And the addition of two obtuse angles are always greater than 180. So if the two angles need to be supplementary, then what is necessary? The mandatory thing is they should be equal to 180. Thank you students for watching the video. We are going to meet soon with another video. Till then, have a nice day ahead. Goodbye.